Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session and we are on chapter called as what measures of dispersion. Okay, so now we are going with the questions which are based on what mean deviation, and यहाँ पे we start with the next question, that is question number 17. Okay, for that we read the question. Values which are given as find mean deviation बोला है from mean for the following data, and the data given over here is 47, 49, 22, 24, 48, 67, 51. So यहाँ पे ये डेटा दिया गया है. So we say it is raw data because all the data which is given over here are separated by what? Comma. So comma करके जब डेटा दिया रहेगा, we say it is called as what? Raw data. So अब जब raw data का value दिया है, so we write over here my value of what? X. So it is 47, then it is 49, next value is 22, 24, 48, 67 and 51. So ये values दिए गए. So we now need to find mean value. Since ये raw data है, तो raw data के mean के लिए we need to add all the values of what? X. So हम add करते हैं values of X. So it is 47 plus 49 plus 22 plus 24 plus 48 plus 67 plus 51. ये सारे values को add किया, we get the answer of this as what? 308. So we write the total of this as 308. तो ये हो गया मेरा value of what? Summation X. अब यहाँ पे I need to check the number of observation. तो मैं बोलूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 and what? 7. So यहाँ पे मुझे mean का value ढूंढना है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ऐसे x bar summation x upon क्या आएगा? n. So it is 308 divided by. So हमने काउंट किया यहाँ पे, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and what? 7. So इसको divide करें by what? 7. So we get the mean value. So 308 divided by. So यहाँ पे divide by किया 7. So we get the answer as what? 44. So हमें यहाँ पे x bar का जो value मिल रहा है, that is 44. So यहाँ पे ये x के बाद एक कॉलम बनेगा called as x minus what? X bar. And can I say इसका मॉड्यूलस वैल्यू आएगा. So when we write over this term, x मतलब क्या आएगा? The value which is there, that is 47 minus x bar मतलब 44, and 47 minus 44 बोलूंगा, उसका मॉड्यूलस वैल्यू चाहिए. मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू भी होता है, that will also be considered as what? Positive. So यहाँ पे 47 minus ये, तो ये तो मुझे मिल जाएगा as what? 3. 49 minus 44, so ये मुझे मिल जाएगा as what? 5. Now it is 22 minus 44. So 22 minus 44 किया तो we get it as what? Minus 22. But since वो मॉड्यूलस वैल्यू है, so we consider this as what? 22. Next value जो है, we get the answer of this as what? 20. फिर next value जो मिला, it is 4. Next value we get it as what? So it is 67 minus क्या आएगा? 44. So ये जो value आएगा, ये आ जाएगा 23. And 51 minus 44. So we get it as what? 7. So यहाँ पे now we need to find total of this. So इसका total आ जाएगा as what? 3 plus 5 plus 22 plus 20 plus 4 plus 23 plus 7. So इसका जो total आया, we get the total of this as what? 84. So यहाँ पे मुझे total मिला as what? 84. And after this उन लोग ने हमें पूछा गया है कि mean deviation about mean. So mean deviation about mean, इसका value ढूंढना है. So we say it is 1 upon n आ जाएगा, summation of modulus of x minus x bar. So यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 upon 7 into, now summation of modulus of x minus x bar, इसका total है 84. So we substitute 84 over here. तो ये हो जाएगा 7 1s and 7 12s. So इसका आंसर आ जाएगा as what? 12. So यहाँ पे mean deviation about a mean. So answer for this is what? 12. So यहाँ पे हमारा 17th question खत्म हुआ. We start with the next question, that is question number 18. So यहाँ पे 18th question start करने से पहले we need to read the question. So the question over here is calculate the mean deviation
from mean and median for the following data, and the data given over here is, it is 100, 150, 250, 360, 491, 670, 500, 250 and what 600. So यहाँ पे I write the values as, तो यहाँ पे मैं पहले डेटा जो दिया है इट इज 100 दिया है, उसके बाद वैल्यू दिया गया है 150, उसके बाद इट इज 250, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 360, नेक्स्ट वैल्यू जो दिया गया है वो है 491, देन इट इज 670, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 500, 250 एंड 600. सो यहाँ पे जो डेटा दिया है इट इज विच टाइप ऑफ डेटा, तो मैं बोलूंगा इट इज रॉ डेटा. सो यहाँ पे उन लोगों ने मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि यू नीड टू फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन, ये दोनों भी कंडीशन, मतलब कहना है यहाँ पे पहले मुझे रॉ डेटा के लिए मीन का वैल्यू ढूंढना होगा एंड रॉ डेटा के लिए मीडियन का वैल्यू ढूंढना है. In order to get those values, I need to first calculate x bar का वैल्यू and median का वैल्यू. So सबसे पहले x bar ढूंढ लेता हूँ. So x bar is equal to, तो मैं बोलूंगा it is summation x upon n. So यहाँ पे summation x बोलता हूँ, इसका मतलब सारे ये ऑब्जर्वेशन का टोटल करना है, सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल करेंगे. So यहाँ पे I find the total of this. So it is 100 बोलूंगा प्लस 150 प्लस 250 हो जाएगा प्लस 360 आ जाएगा प्लस 491 प्लस 670 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 600. सो इसका टोटल किया, वी गेट द टोटल ऑफ दिस एज व्हाट 3371 अपॉन n. सो यहाँ पे मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो यहाँ पे ये हो जाएगा डिवाइड बाय व्हाट 9. सो ये नंबर को डिवाइड बाय 9 किया, वी गेट द आंसर फॉर दिस एज व्हाट 374.555 आ रहा है. सो वी राउंड ऑफ दिस वैल्यू टू व्हाट 374 पॉइंट क्या आएगा 56. ये मुझे मिल गया वैल्यू ऑफ व्हाट x बार. अब ऐसे ही मुझे वैल्यू ऑफ क्या ढूंढना है, आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ व्हाट मीडियन. सिंस मुझे मीडियन का वैल्यू भी ढूंढना है, सो आई से ओवर हियर मीडियन के लिए मेरा रॉ डेटा का कंडीशन होता है अरेंजिंग द गिवन डेटा in ascending order. So ascending order of the given data is, so I write over here it is 100, then it is 150, उसके बाद है 250, 250, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 360, 360 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 491, 491 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 500, 500 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 600 एंड उसके बाद जो वैल्यू है वो है 670. सो अगर मैं यहाँ पे डेटा देखता हूँ तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड व्हाट 9. सो इसके बाद हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 9. सो यहाँ पे ये जब n इज इक्वल टू 9 लिखा मतलब ये ऑड है. तो मीडियन के लिए केस फॉर ऑड इज, एंड उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन. सो यहाँ पे वी राइट इट एज वैल्यू ऑफ 9 प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन. कहने से 9 प्लस 1 मतलब 10 होता है, 10 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन मतलब ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ क्या है लिखूंगा मैं यहाँ पे 10 अपॉन 2 विच इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप में वी राइट इट एज व्हाट वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. एंड व्हेन वी से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन तो हमने जो डेटा अरेंज किया उसके बाद जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होता है हम वो वैल्यू लिखेंगे. तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 एंड व्हाट 5. सो वी राइट इट एज व्हाट 360. सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट मीडियन. सो हमने यहाँ पे मीन ढूंढ लिया दैट इज x बार एंड मीडियन ढूंढ लिया दैट इज 360. एंड ये मीडियन को मैं डिनोट कर सकता हूँ बाय व्हाट m. सो यहाँ पे ये मीडियन आ गया एंड मीन आ गया. अब नेक्स्ट वैल्यू जो है वी नीड टू फाइंड मीन डेविएशन का वैल्यू. सिंस मीन डेविएशन ढूंढना है फ्रॉम मीन एंड मीडियन, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा x जो मेरे ओरिजिनल वैल्यूज है वो दैट इज 100 आएगा, 150 लिखता हूं, 250, 360, 491, 670,
500, 250, 600। उसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं x माइनस एक्स बार, बट यह आएगा मॉड्यूलस में, एंड इसके बाद लिखूंगा x माइनस m, m इज डिनोटेड फॉर व्हाट, मीडियन, एंड वो भी मॉड्यूलस में। सो यहाँ पे x बार का वैल्यू है 374.56। सो अब ये जो वैल्यू है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज 100 माइनस 374.56। सो इसका आंसर होता है माइनस 274.56, बट ये मॉड्यूलस है, सो वी कंसीडर इट एज व्हाट, 274.56। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 150। सो इट इज 150 माइनस, सो यहाँ पे 374.56 आएगा। सो द डिफरेंस ऑफ दैट इज माइनस 224.56 आ रहा है, बट सिंस ये मॉड्यूलस है, सो वी कंसीडर इट एज व्हाट, 224.56, मतलब नेगेटिव वैल्यू भी क्या कंसीडर हो जाएगा एज व्हाट, पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो जाएगा 124.56। अब यहाँ पे 360 है माइनस 374.56, सो इसका डिफरेंस निकाला तो मुझे आ रहा है आंसर एज व्हाट, माइनस 14.56, बट ये मॉड्यूलस है, सो वी कंसीडर इट एज व्हाट, 14.56। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 491। सो 491 माइनस क्या आएगा, सो माइनस में बोलूंगा इट इज अगेन 374.56, तो इसका टोटल आ रहा है 116.44। नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 670। 670 माइनस क्या आएगा, सो माइनस वापस 374 पॉइंट क्या लिखूंगा, 56। सो आंसर फॉर दिस इज 295 आ रहा है 0.44। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू दिया है वो है 500। 500 माइनस, सो 500 माइनस क्या आएगा, 374.56। सो आंसर फॉर दिस इज 125.44। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है 250। 250 माइनस वैल्यू किया तो आंसर आ रहा है माइनस 124.56। सो वी राइट इट एज व्हाट, 124.56 सिंस इट इज मॉड्यूलस वैल्यू। एंड अब 600 है, सो 600 माइनस 374.56 किया, we get the answer as what, 225.44। so अब मुझे ये वैल्यू का टोटल करना है, एंड वैसे ही मुझे x माइनस m ढूंढना है। सो x का वैल्यू 100 ही रहेगा। अब m, सो m का वैल्यू यहाँ पे है 360, तो ये 360, तो मैं बोलूंगा 100 माइनस 360, तो इसका आंसर होता है माइनस 260, बट माइनस 260 ये मॉड्यूलस है, सो वी कंसीडर इट एज व्हाट, 260, क्योंकि नेगेटिव साइड को भी क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव, सिंस इट इज मॉड्यूलस। सो इट इज 150 माइनस 360, वी गेट द आंसर एज व्हाट, 210। उसके बाद मुझे नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा 110। उसके बाद मेरा नेक्स्ट वैल्यू आएगा 0। उसके बाद इट इज 491 माइनस 360, ये हो जाएगा 131। 670 माइनस 360, तो मुझे उसका आंसर मिल जाएगा एज व्हाट, 310। 500 में से 360 गया, सो 500 माइनस 360, द आंसर फॉर दिस इज व्हाट, 140। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है वो है 110, एंड 600 में से 360 गया, वी गेट द आंसर एज व्हाट, 240। अब मुझे ये दो वैल्यूज का टोटल करना है, ठीक है। तो पहला जो ये कॉलम है उसका टोटल करते हैं। सो वी गेट द आंसर फॉर दिस इज 274.56 प्लस 224.56 आएगा, प्लस 124.56 आएगा, प्लस इट इज 14.56 आएगा, प्लस इट इज 116.44, प्लस 295.44, प्लस इट इज 125.44, प्लस 124.56, प्लस it is 225.44. So answer of this is 1525.56. अब जैसे इसका टोटल किया, we do total of this column as well. So इसका टोटल करेंगे तो it is 260 plus 210 plus 110 plus 131 plus 310 plus 140 प्लस 110 प्लस 240, तो ये वैल्यू को ऐड किया, वी गेट द आंसर एज व्हाट, 1511। तो ये मुझे मिला टोटल। सो टोटल ऑफ ये दो कॉलम्स आ गए। अब मुझे यहाँ पे लिखना है मीन डिविएशन, तो मीन डिविएशन को एमडी से डिनोट करते हैं। मीन डिविएशन फ्रॉम क्या लिखूंगा, एक पूछा गया है मीन, सो ये हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ x माइनस x बार आ जाएगा। सो 1 अपॉन व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू हमें दिया है व्हाट, 9।
सो 1/9 आएगा इनटू 1525 पॉइंट क्या आएगा 56. सो इसको डिवाइड करते हैं. सो वी गेट द आंसर ऑफ दिस एज व्हाट 1525 पॉइंट क्या लिखा 56 डिवाइड बाय व्हाट 9. सो आंसर आ जाएगा एज व्हाट 169 पॉइंट, ये हो जाएगा 50666. सो इसको मैं लिखूंगा एज व्हाट 169.51 राउंड ऑफ किया. एंड इसके बाद मुझे एक और वैल्यू पूछा गया है एंड वो वैल्यू है MD फ्रॉम मीडियन. सिंस ये वैल्यू पूछा गया है वी राइट इट एज 1/n समेशन ऑफ x माइनस क्या लिखूंगा m. सो यहाँ पे मैं रिपीट करता हूं एक बार, इट इज 1/n लिखा समेशन ऑफ x माइनस m. सो यहाँ पे 1/ क्या आएगा 9. सो इट इज 1/9 लिखा समेशन ऑफ x माइनस m दैट इज x माइनस मीडियन, उसका मॉड्यूलस का वैल्यू टोटल है 1511. सो वी राइट इनटू 1511. सो यहाँ पे हम चेक कर दे, इट इज 1511 डिवाइड बाय 9. सो आंसर फॉर दिस इज 167 आ रहा है 0.888 आ रहा है. सो इट इज रिकरिंग. सो वी से वी राउंड ऑफ दिस वैल्यू टू व्हाट 167 पॉइंट क्या लिखूंगा 89. सो ये क्वेश्चन में जो पार्ट हमको पूछा गया था ये हमने फाइंड किया. नाउ विद दिस सम इज ओवर एंड वी मेक अ नोट ऑफ दिस. So now we start with the next question, that is question 19. Okay? Question 19 में the values which are given is calculate MD from AM बोला है, median बोला है, mode for the following data representing marks out of 25 of 9 students दिया है. The data given over here is 7, 4, 10, 9, 15, 12, 7, 9 and what 7. सो यहाँ पे डेटा जो दिया है वो पहले लिस्ट कर देता हूं. इट इज 7 फॉलोड बाय 4, 10, 9. नेक्स्ट जो वैल्यू दिया है वो है 15, 12. नेक्स्ट वैल्यू जो दिया गया है वो है 7, 9 एंड 7. ठीक है, इतना डेटा दिया है. नाउ सिंस वी नीड टू फाइंड मीन डिविएशन फ्रॉम AM का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन. इसका मतलब मुझे पहले x बार का वैल्यू चाहिए. सो यहाँ पे सबसे पहले हम ढूंढते हैं x बार. कहने से ये रॉ डेटा है तो x बार का वैल्यू होता है समेशन x अपॉन क्या आएगा n. अब समेशन x बोला है सो वी नीड टू कैलकुलेट समेशन x मतलब 7 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7. सो इसका टोटल जब किया तो इसका टोटल आ रहा है व्हाट 80 अपॉन ये हो जाएगा 9. एंड व्हेन आई से 80 डिवाइड बाय 9 सो वी गेट द आंसर एज 8.888 आ रहा है. सो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वी गेट द आंसर एज व्हाट 8.89. ये हो गया मेरा x बार का वैल्यू. नाउ क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला है मीडियन. सो यहाँ पे ही हम लोग रॉ डेटा का मीडियन के स्टेप्स कर देते हैं. वी फाइंड वैल्यू ऑफ मीडियन फर्स्ट. सो यहाँ पे वी से अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सो ये वैल्यू लिखा. सो जब ये डेटा को अरेंज करते हैं इनटू असेंडिंग ऑर्डर वी गेट द फर्स्ट वैल्यू एज व्हाट 4. नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगा तो मैं बोलूंगा 7.
बट ये 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, तो मैंने 3 बार 7 लिखा। आफ्टर दैट नेक्स्ट वैल्यू इज 9 2 बार है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 10, उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 12 एंड उसके बाद जो वैल्यू है वो है 15। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये 3 हो गया, ये 3 6 और ये 9, सो टोटल 9 ऑब्जर्वेशन। सो आई राइट आफ्टर दिस n इज इक्वल टू व्हाट? 9। n इज इक्वल टू 9 आया, वी से 9 इज एन ऑड नंबर, मतलब यहाँ पे मीडियन का ऑड वाला केस का फॉर्मूला यूज होगा। सो वी से मीडियन इज इक्वल टू, फॉर ऑड केस वी से द फॉर्मूला फॉर दैट इज व्हाट? वैल्यू ऑफ n plus 1 अपॉन क्या आएगा? टोथ ऑब्जर्वेशन। So when we say this value, it is value of, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा n plus 1, मतलब यहाँ पे 9 is my value of n plus 1, so 9 plus 1 क्या आएगा? 10, 10 divided by what? 2, so ये हो जाएगा 10 by 2 observation which is 5th observation। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा value of 5th observation एंड यहाँ पे जो मेरा 5th observation है वो value है 9। So we get median as 9. So we got median का value as what? 9. So after this, next term which we need to find is what? Mode. But ये mode ढूंढना है मुझे for what? Raw data. Raw data में अगर mode ढूंढना रहता है तो इसे जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, so over here मैं ऐसा लिखूंगा, here the highest frequency is 3 and that is of 7, so therefore मैं बोलूंगा mode is equal to क्या आएगा? 7। we write it as what? mode का value as what? 7। since ये mode का value 7 आ गया, अब देखो यहाँ पे we got value of x bar मतलब mean मिल गया, we got value of median मतलब median का value 9 आ गया and mode का value 7 आ गया। so now we can prepare what? the table for what? mean deviation। so mean deviation के लिए जब टेबल बनाना है, we write the value of x over here, we write it as x minus x bar का कॉलम, we write it as x minus m that is median के लिए and x minus mode, ठीक है। तो ये कॉलम्स बनेंगे। we need to understand since यहाँ पे हमें ढूंढना है mean deviation about what? mean। एक्चुअल में उन लोग ने बोला अरिथमेटिक मीन, am बोला है मतलब अरिथमेटिक मीन बोला है, दैट इज सेम एज व्हाट? x बार। उसके बाद यहाँ पे मीडियन बोला गया था एंड व्हाट? मोड। सो ये 3 कॉलम्स बना हमने। अब यहाँ पे x के वैल्यूज क्या है? तो मैं बोलूंगा 7 4 10 9 15 12 7 9 एंड व्हाट? 7। सो यहाँ पे x माइनस एक्स बार, तो जब x माइनस एक्स बार बोला तो ये हो जाएगा 7 माइनस 8.89 बोलूंगा मैं। सो आंसर आता है माइनस 1.89, बट सिंस इट इज मॉड्यूलस वैल्यू वी कंसीडर इट एज व्हाट? 1.89। उसके बाद इट इज 4 माइनस 8.89, सो इसका आंसर आता है माइनस 4.89, बट अगेन इट इज मॉड्यूलस सो वी कंसीडर इट एज व्हाट? 4.89। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 10 माइनस 8.89, सो इसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट? 1.11। उसके बाद है नेक्स्ट वैल्यू 9 माइनस 8.89, सो इसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट? 0.11। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 15 माइनस 8.89, सो इसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट? 6.11। उसके बाद इट इज 12 माइनस 8.89, सो इसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट? 3.11। 7, सो 7 का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, उसका आंसर आएगा एज व्हाट? 1.89। 9 का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया, इट इज 0.11 एंड 7 का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया, इट इज व्हाट? 1.89। सो ये वैल्यूज मिल गए। सो अब ये वैल्यूज मिल गया, अब x माइनस m ढूंढना है। सो जब मैं बोलता हूं x माइनस m, यहाँ पे m का वैल्यू दैट इज मीडियन का वैल्यू है व्हाट? 9। सो ये 9, सो यहाँ पे मैं बोलूंगा 7 माइनस 9, तो इसका आंसर आएगा -2, बट मॉड्यूलस है इसलिए हम लिखेंगे एज व्हाट? 2। फिर आएगा 4 माइनस 9, तो ये -5 होता है बट मॉड्यूलस है तो वी राइट इट एज व्हाट? 5। 10 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। 15 माइनस 9, ये हो जाएगा 6। 12 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3। 7 माइनस ये वैल्यू तो -2 होता है बट मॉड्यूलस है तो वी राइट इट एज 2। उसके बाद ये आ जाएगा 0 एंड उसके बाद वापस से इसका आंसर आएगा एज व्हाट? 2। सो ये वैल्यू लिख दिए। अब x माइनस मोड, सो x माइनस मोड बोला तो x यहाँ पे है 7, मोड का वैल्यू भी है 7, सो 7 माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा? 0।
4 माइनस है तो -3 होता है, बट मॉड्यूलस है, सो -3 विल बिकम व्हाट 3। उसके बाद 10 माइनस 7 तो ये क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 9 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 2। 15 माइनस 7 तो ये हो जाएगा एज व्हाट 8। उसके बाद नेक्स्ट है 12 माइनस 7 तो 12 माइनस 7 तो ये हो जाएगा एज व्हाट 5। फिर वापस 7 माइनस 7 तो ये हो जाएगा एज व्हाट 0। 9 माइनस 7 तो इसका वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 2 एंड 7 माइनस 7 तो वापस ये वैल्यू हो जाएगा 0। सो नाउ आई नीड टू फाइंड टोटल ऑफ दिस एंड टोटल ऑफ दिस। इसका मतलब मैं ऐसा बोलूंगा, मुझे x माइनस एक्स बार का टोटल चाहिए मॉड्यूलस वैल्यू, मुझे x माइनस m का मॉड्यूलस वैल्यू का टोटल चाहिए एंड x माइनस मोड का मॉड्यूलस वैल्यू का टोटल चाहिए। सो अब पहला ये वैल्यू का टोटल करते हैं। सो ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 1.89 प्लस इट इज 4.89 प्लस इट इज 1.11 प्लस इट इज 0.11 प्लस इट इज 6.11 बोलूंगा प्लस 3.11 है प्लस 1.89 है प्लस इट इज 0.11 प्लस 1.89 वैल्यू। सो इसका टोटल किया तो वी गेट द टोटल ऑफ दिस एज व्हाट 21.11 आ रहा है। उसके बाद सेकंड कॉलम का टोटल करेंगे। सो यहाँ पे इट इज 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2। इसका टोटल आ जाएगा एज व्हाट 21। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2। सो इसका आंसर आ गया एज व्हाट 23। सो ये वैल्यू मिल गया मुझे। तो सिंस इतने वैल्यू से मिल गए, अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा दैट इज वी नीड टू राइट मीन डेविएशन अबाउट AM। सो जब अबाउट AM बोला इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। सो वी राइट इट एज 1 अपॉन n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन n की जगह पे क्या आ जाएगा तो मैं बोलूंगा 9 इनटू ये हो जाएगा 21.11। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, वी गेट द आंसर एज 21.11 डिवाइड बाय व्हाट 9। सो इसको डिवाइड किया, वी गेट द आंसर एज व्हाट 2.345555 आ रहा है। सो वी से वी राउंड ऑफ दैट वैल्यू एंड वी राइट इट एज व्हाट अप्रोक्सीमेटली 2.35। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अप्रोक्सीमेटली 2.35। इसके बाद मुझे जो पूछा गया है वो है मीन डेविएशन अबाउट, मैं लिखूंगा मीडियन। सिंस अबाउट मीडियन बोला है वी राइट इट एज 1 अपॉन n समेशन ऑफ x माइनस मीडियन के लिए। सो वी से 1 अपॉन 9 इनटू ये हो जाएगा 21। सो यहाँ पे मुझे लिख रहा होगा 21 डिवाइड बाय व्हाट 9। सो 21 डिवाइड बाय 9 किया, वी गेट द आंसर एज व्हाट 2.3333। नाउ यहाँ पे 3333 रिकरिंग आ रहा है, सिंस इट इज 5 या 5 से कम, सो वी राइट इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट का लिखूंगा 33। इसके बाद मुझे पूछा गया है इट इज मीन डेविएशन अबाउट मोड। सो जब ये वैल्यू वी से इट इज 1 अपॉन n मॉड्यूलस में समेशन और उसके बाद मॉड्यूलस x माइनस क्या लिखूंगा मोड। सिंस ये वैल्यू वी से इट इज 1 अपॉन क्या आएगा 9 इनटू ये हो जाएगा 23। सो वी नीड टू राइट 23 डिवाइड बाय क्या आएगा 9। सो 23 डिवाइड बाय 9 किया, वी गेट द आंसर एज व्हाट 2.555। तो कहना इसे इसको जब राउंड ऑफ करके तो ये हो जाएगा 2.56 क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा है, तो ये राउंड ऑफ किया तो वी गेट इट एज व्हाट 2.56। तो यहाँ पे हमें मीन डेविएशन के वैल्यूज मिल गए। सो विद दिस क्वेश्चन इज ओवर, वी मेक अ नोट ऑफ दिस।
We start with the next question, that is question number 20. So यहाँ पे question number 20, we read that question. The question given over here is calculate mean deviation from AM and median for the following frequency distribution. Now the values given over here is x. So यहाँ पे मैं first value लिखूंगा x and second value यहाँ पे दिया है as what f. So x में values जो दिए हैं वो है 10, 11, 12, 13 ये values दिया गया है. एंड f में जो वैल्यूज दिए गए हैं वो है 8. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 12. उसके बाद जो वैल्यू दिया गया है वो है 18 एंड उसके बाद जो वैल्यू दिया है वो है 12. सो यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, f का वैल्यू दिया है. नाउ सिंस x एंड f एंड x में भी इंडिविजुअल वैल्यूज दिए हैं, इसका मतलब ये डिस्क्रीट टाइप का डेटा है. सो डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा के लिए आई नीड टू फाइंड अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, x बार ढूंढना है. सो वो x बार का वैल्यू ढूंढने के लिए वी शुड हैव द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ xf. सो समेशन xf ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा, दैट इज व्हाट x into f. सो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बनाने के लिए ये x into f मतलब ये दो कॉलम मल्टीप्लाई हो गए. सो ये मुझे देगा 10 into 8 which is what 80. 12 into 11 ये हो जाएगा 132. वैसे 18 into 12 करना है जिसका वैल्यू हो जाएगा 216 एंड 13 into 12 करेंगे सो ये हो जाएगा 156. सो यहाँ पे मुझे इसका टोटल ढूंढना होगा एंड मुझे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट वैल्यू ऑफ व्हाट x बार. सो यहाँ पे मैं बोलूंगा समेशन xf अपॉन समेशन क्या लिखूंगा f. सो यहाँ पे पहले टोटल करते हैं. सो वी से इट इज 8 एंड 12, ये दो का वैल्यू टोटल किया तो ये हो जाएगा 20 एंड ये 30. सो 20 एंड 30 तो टोटल हो जाएगा एज व्हाट 50. सो ये वैल्यू 50 आ गया. अब यहाँ पे x into f का टोटल करना है. सो इसका आंसर है 80 प्लस 132 प्लस 216 है प्लस इट इज 156. सो इसका टोटल किया वी गेट द आंसर एज व्हाट 584. सो अभी यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है 584, ये मुझे मिला टोटल. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 584 डिवाइड बाई, सो डिवाइड बाई क्या आएगा 50. सो 584 को डिवाइड किया बाई 50 तो 584 डिवाइड बाई क्या करेंगे 50. सो वी गेट द आंसर एज व्हाट 11.68. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x बार का वैल्यू एज व्हाट 11.68. तो ये वैल्यू होगी. अब यहाँ पे मुझे x बार का वैल्यू मिल गया. ऐसे ही मुझे क्या ढूंढना है, मीडियन ढूंढना है. नाउ सिंस मुझे मीडियन ढूंढना है तो मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट CF एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस देन टाइप. सो CF लेस देन टाइप लिखा. यहाँ पे मेरा फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा 8. अब 8 प्लस 12 तो ये हो जाएगा एज व्हाट 20. 20 प्लस 18 तो ये हो जाएगा एज व्हाट 38 एंड 38 प्लस 8 तो ये हो जाएगा एज व्हाट 50. सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट n. तो सिंस दिस इज माय वैल्यू ऑफ n, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीडियन ढूंढने के लिए सिंस इट इज डिस्क्रीट डेटा तो हमारा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन क्या आएगा 2 ऑब्जर्वेशन. सो वी राइट इट एज वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n की जगह पे क्या आएगा 50. तो इट इज 50 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब ये हो जाएगा 51 बाई 2 एंड 51 बाई 2 अगर हमने देगा सो 51 बाई 2 ऑब्जर्वेशन में बोलूंगा. सो वैल्यू ऑफ दिस बिकम्स व्हाट वैल्यू ऑफ 25.5 observation. So we need to check where 25.5th observation will lie. So 25.5th observation मतलब कहने से इसमें नहीं और ये कैटेगरी में आएगा. And since ये कैटेगरी में आएगा, so we say the corresponding value of x. So that becomes my value of what median. So यहाँ पे 12 आ जाएगा. So we write it as what m, that is median as what 12. So मुझे यहाँ पे मीडियन का वैल्यू मिल गया, मुझे यहाँ पे x बार का वैल्यू मिल गया, दैट इज अरिथमेटिक मीन मिल गया एंड मीडियन मिल गया. सो अब यहाँ पे यही टेबल में मैं एक कॉलम बनाऊंगा एज व्हाट x माइनस x बार मॉड्यूलस में एंड x माइनस m मॉड्यूलस में. सो यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यूज आ रहे वैसे वैसे हम कॉलम्स बनाते जा रहे. सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि जब हम टेबल के वैल्यूज बना रहे सो वी राइट इट स्मॉल. मतलब यहाँ पे क्या है कि टेबल में वैल्यूज कितने ऐड हो गए वो हमको क्या क्या वैल्यूज पूछे उस हिसाब से डिसाइड होता है. तो हमने ये दो कॉलम को यहाँ पे ऐड किया. सो अगर हमने स्टार्टिंग में अगर टेबल को स्प्रेड करके लिखा रहेगा तो वापिस हमें कैंसिल करना होगा या फिर एक नया टेबल बनाना पड़ेगा. सो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो वी राइट टेबल इन व्हाट अ स्मॉलर वैल्यू के टर्म्स में.
मतलब भले फिर यहाँ पे ये दो लाइन में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइम, ऐसा दो लाइन, सो कंप्रेस करके थोड़ा लिखना है सो दैट हमारा एक ही टेबल में सारे वैल्यूज आ जाए। सो यहाँ पे x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस के साथ है, सो मैं बोलूंगा x का वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा 10। सो 10 माइनस क्या आएगा 11.68। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा 10 माइनस 11.68, इसका वैल्यू निकाला तो ये होता है माइनस 1.68। सिंस ये माइनस 1.68 है तो मैं बोलूंगा मॉड्यूलस है, तो ये हो जाएगा 1.68। नेक्स्ट आएगा 11 माइनस 11.68। सो 11 माइनस 11.68 जो होता है तो ये हो जाएगा 11 माइनस 11.68। सो आंसर आएगा माइनस 0.68, बट उसको कंसीडर करके एज व्हाट 0.68। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 12 माइनस 11.68, मैं बोलूंगा नेक्स्ट वैल्यू जो हो जाएगा वो आएगा इट इज 0.32, एंड उसके बाद 13 माइनस क्या आएगा 11.68। सो वी गेट द आंसर फॉर दिस एज व्हाट 1.32। ठीक है, हमें इसका टोटल ढूंढना होगा। सेम वे x माइनस m ढूंढेंगे। सो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, तो वी गेट वैल्यू ऑफ m इज व्हाट 12। सो यहाँ पे 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 तो ये माइनस 2 होगा, बट मॉड्यूलस है सो वी कंसीडर इट एज व्हाट 2। नेक्स्ट है 11 माइनस 12 तो माइनस 1 होता है, बट मॉड्यूलस वैल्यू तो वी कंसीडर इट एज व्हाट 1। ये हो जाएगा 0 एंड उसके बाद वैल्यू आएगा 1। सो वी राइट द टोटल ऑफ दिस एज व्हाट, ये हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे ये टर्म का टोटल करते हैं तो इट इज 1.68 हो जाएगा प्लस 0.68 हो जाएगा प्लस 0.32 हो जाएगा प्लस 1.32 हो जाएगा। सो टोटल इसका भी आ रहा है व्हाट 4.00। सो यहाँ पे मुझे ये वैल्यूज मिल गए। अब मुझे मीन डेविएशन ढूंढना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं मीन डेविएशन दैट इज एमडी अबाउट, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मीन। सो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ मॉड्यूलस में। बट अगर तुम देखते हो ये अगर लिखा तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे इधर और ये वैल्यू उससे हमारा काम नहीं होने वाला है, ये मिस्टेक होता है, ये मिस्टेक होता है। इसलिए हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये x माइनस एक्स बार x माइनस m ढूंढना ना, सिंस दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा, तो यहाँ पे और दो कॉलम्स बनेंगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि थोड़ा मतलब गैप रखना सो दैट आगे कॉलम्स ऐड हो पाए। सो यहाँ पे f इनटू क्या आएगा x माइनस एक्स बार भी लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ पे f इनटू क्या आएगा x माइनस m भी लिखना होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है x माइनस एक्स बार, ये x माइनस एक्स बार के साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे 1.68 इंटू 8, 0.68 इंटू 12, ऐसे ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा, एंड सेकेंड के लिए दिस इंटू फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे अब f इंटू एक्स माइनस एक्स बार ये ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे x माइनस एक्स बार देखता हूं एंड f का जो वैल्यू है वो। सो ये दो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू मुझे मिलेगा कहां पे, यहाँ पे। एंड वैसे ही अगर मुझे चाहिए f इंटू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस m, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे मॉड्यूलस x माइनस m, ये जो वैल्यू है वो इंटू, अब यहाँ पे ये कंडीशन आएगा। सो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार ये किया तो यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगा। सो अब हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। सो वैल्यू ओवर हियर इज 1.68 आएगा इंटू 8 पहला वैल्यू, सो ये हो जाएगा 13.44। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 0.68 इंटू 12। सो ये वैल्यू कैलकुलेट किया तो वी गेट द आंसर एज व्हाट 8.16। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 0.32 इंटू ये हो जाएगा 18, सो ये हो जाएगा 5.76। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 1.32 इंटू 12, सो इसका आंसर आ जाएगा व्हाट 15.84। सो अब हमें इसका टोटल ढूंढना होगा। सो ये हो जाएगा 13.44 प्लस 8.16 प्लस 5.76 प्लस 15.84, सो इसका टोटल आ जाएगा व्हाट 43.20। सो अब ये वैल्यू मिल गया। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू जो ढूंढना है दैट इज f इंटू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस m। सो f इंटू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस m मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगा ये दिस इंटू दिस, तो 8 2 जा तो ये हो जाएगा एज व्हाट 16। उसके बाद 12 1 जा तो ये हो जाएगा एज व्हाट 12। फिर 18 इंटू 0 है तो ये हो जाएगा 0, एंड 12 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 12। सो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है अब इसका टोटल निकालेंगे। सो इट इज
16 प्लस 12 प्लस 12, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16 प्लस 12 प्लस 12, सो ये हो जाएगा 40 वैल्यू आया। सो अब यहाँ पे ये टेबल में सारे वैल्यूज कैलकुलेट किया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन। यहाँ पे ये जो मीन है क्वेश्चन में दिया गया है अरिथमेटिक मीन, वो अरिथमेटिक मीन का ही मतलब होता है मीन, सो मैंने यहाँ पे मीन लिख दिया, इज इक्वल टू, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन n समेशन ऑफ f, फिर दिया है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस x बार, 1 अपॉन क्या आएगा 50 इनटू ये हो जाएगा 43.20, ठीक है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये होता है 43.20 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 50, सो इसको डिवाइड किया, वी गेट द आंसर एज व्हाट 0.864। ये मुझे मिल गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब मैं ढूंढ रहा हूं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सो इसका वैल्यू आएगा 1 अपॉन n समेशन f इनटू मॉड्यूलस में x माइनस क्या लिखूंगा m फॉर मीडियन, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 50 इनटू ये हो जाएगा 40, so इसका आंसर आ जाएगा as what 0.8। so with this question is done। we start with the next question, that is question number 21। so the question over here is find mean deviation from arithmetic mean for the following data and also the coefficient of mean deviation। so यहाँ पे we need to find mean deviation का वैल्यू, बट यहाँ पे जो वैल्यूज दिया है वो है 130, 120, 125, 140 and 110। सो यहाँ पे अगेन द वैल्यूज व्हिच आर गिवन इज व्हाट रॉ डेटा। सो यहाँ पे पहले जो डेटा दिया है वो लिख देता हूँ, इट इज 130, 120, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है इट इज 125, देन इट इज 140 एंड 110। सो यहाँ से मुझे अरिथमेटिक मीन तो x बार ढूंढना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 130 प्लस 120 प्लस 125 प्लस 140 प्लस 110 डिवाइड बाय, सो यहाँ पे मैं बोला डिवाइड बाय व्हाट 5। सिंस यहाँ पे डिवाइड बाय 5 क्यों कर रहे, सिंस 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस आते हैं तो डिवाइड बाय 5 है। सो इसका टोटल करते हैं पहले। सो टोटल ऑफ दिस इज 130 प्लस उसके बाद है 120 प्लस इट इज 125 प्लस 140 प्लस 110, इसका टोटल किया वी गेट द आंसर एज व्हाट 625 अपॉन व्हाट 5, दिस इज इक्वल टू 125। ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट x बार। तो नाउ आफ्टर दिस वी से we'll write over here x and यहाँ पे लिखेंगे x minus x bar with modulus sign, ठीक है। तो x में क्या वैल्यू दिया है, तो मैं बोलूंगा इट इज 130 फॉलोड बाय 120, 120 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दिया है वो है 125, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 140 और उसके बाद जो वैल्यू दिया है वो है 110, ठीक है। सो अभी 130 माइनस 125, सो इसका आंसर आ जाएगा इज व्हाट 5। 120 माइनस 125, तो इसका आंसर एक्चुअल में आता है -5, बट ये -5 की जगह पे सिंस ये मॉड्यूलस वैल्यू है सो वी कंसीडर इट एज व्हाट 5। 125 माइनस 125 तो ये हो जाएगा 0। 140 माइनस 125, तो 140 माइनस 125 जो है उसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट 15, एंड 110 माइनस 125 तो इसका आंसर आता है -15, बट सिंस ये मॉड्यूलस वैल्यू है वी कंसीडर इट एज व्हाट 15। सो अब हमें इसका टोटल चाहिए। सो ये 5 मतलब 10 हो गया और 15 मतलब ये 30 हो गया, 30 और ये 10 तो ये हो जाएगा एज व्हाट 40। सो यहाँ पे मुझे 40 वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू मिल जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूं मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, ऐसा बोला है फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। सो इसका आंसर होता है 1 अपॉन n समेशन ऑफ x माइनस क्या लिखूंगा x बार, सो इट इज 1 अपॉन 5 इनटू, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा समेशन ऑफ x माइनस x बार जो है वो है 40, सो यहाँ पे इनटू क्या आएगा 40, सो वी से दिस वैल्यू इज व्हाट 8। ये वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा गया था एंड आल्सो द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बोला है। सो यहाँ पे लास्ट पार्ट है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कैन आई से इट विल बी फ्रॉम, वापस से क्या आएगा मीन, तो यहां पे मैं लिखूंगा इट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन, यहां पे लिखा जाएगा एज व्हाट मीन। सो यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का आंसर आया एज व्हाट 8, सो ये 8 लिखा अपॉन मीन। सो मीन का वैल्यू क्या है x बार दैट इज 125, सो यहाँ पे आएगा 8 अपॉन क्या लिखूंगा 125। सो अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे दैट इज 8 डिवाइडेड बाय व्हाट 125, सो इसको डिवाइड किया वी गेट द आंसर एज व्हाट 0.064।
सो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. एंड विद दिस क्वेश्चन इज डन एंड दिस सेशन इज ओवर. थैंक यू.